Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt RBE CGL live mock test, which is available on the platform of the RBE, and you guys can attempt this. What is this? You guys attempt on the website of the RBE, and you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also comment your score section wise, and like the video and share the video, and subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test. देखते हैं बस रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि कल का एक वीडियो था जिसमें रिकॉर्डिंग तो टाइम मैनिपुलेशन भी गई थी. ओके, अगला जनरल अगेन. Which of the following is the largest crystal plate on earth with an area of this kilometer? लार्जेस्ट सबसे सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट क्या कौन सी है? साउथ अमेरिकन प्लेट नहीं, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट. एक मिनट ना, सबसे बड़ी कौन सी थी? साउथ अमेरिकन तो नहीं थी, यूरेशियन प्लेट भी नहीं थी, सबसे बड़ी थी मेरे हिसाब से पैसिफिक प्लेट. हाँ, अगला. In which of the following years did Subhash Chandra Bose refer to Mahatma Gandhi as a father of nation? 1940 something, 1944, नहीं 1942, 1941, 1939. एक second. The father of nation. Which of the following years did Subhash refer to the Mahatma Gandhi as the father of nation? नहीं यार. Which of the following statement is correct about the composition of the agriculture sector and employment in GDP post-independence? So it depends. Proportion of employment has declined significantly, but not the share of the agriculture sector in GDP. ठीक है. The proportion of both the sector, agriculture sector and employment has increased significantly. नहीं नहीं, देखो GDP में जो contribution था वो एग्रीकल्चर का वो तो डिक्लाइन नहीं हुआ था, तो ये वाला गलत यहीं पे हो गया. ठीक, ये भी गलत हो गया. एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द शेयर ऑफ द, ये सही है. Tirot Singh was the leader of which of the following names? नहीं मालूम. Direct. Which of the following statement is not correct regarding the alkali metals? Okay. All the alkali metals are silvery white, soft and light metals. ठीक है. The ionization enthalpy of the alkali metals are considered low and decrease down the group. ठीक है. Group 1 metal are known as alkali metal. All the alkali metals have 2 valence electron. 2 valence electron कहाँ से आ जाएगा? ये गलत हो गया, बस ये वाला गलत हो गया यहाँ पे. 2 valence electron नहीं. Which of the following statement is incorrect about the music of India? Tala is a cyclic arrangement of tal, time unit. ठीक है. A rag is believed to have started as a tribal or folk tune. The Shruti is a unit of measure or small differences between the various constitutive pitches within a gram or a score. The musical instrument Kamaicha is majorly used by the Manganian community of Manipur as a popular accompaniment of their songs. अच्छा नहीं है. अगला. Who is the author of the book A Life Misspent? नहीं मालूम. Which institution has recently launched an AI tool to mule Hunter.ai against financial fraud? नहीं मालूम. How many chances does a high jumper get for overcoming a certificate? नहीं मालूम. In which 5-year plan was the food work and productivity slogan was used? Food work, FLP, FWP तो मेरा इसमें था ना 6 5-year plan. फोर्थ में था इसमें ना. लेबर्स प्रोग्राम किसमें आया था? 5th में आया था मेरे हिसाब से. कंफर्म नहीं है तो नहीं लगाऊंगा टिक, बाकी इसको मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड? थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमेटा, मैट्रिक्स. सेल मेम्ब्रेन में तो होता नहीं, मैट्रिक्स में भी नहीं होता. थाइलाकॉइड्स. Which research was fundamental in studying the modern principle known as surface tension, which describes the proportion of liquid and solid surfaces and interfaces? Corey, Stevens, Agnew, Gleason, Mason. नहीं मालूम. Which of the following is not a feature of the Constitution of India? Universal adult suffrage, independent judiciary, dual citizenship. ये गलत है. अगला. According to census of 2011, what is the gap between the male and female literacy? 16 point something है, 16.68. अगला. Which of the following is the transboundary river between India and Pakistan? It is Jhelum, Beas, Ravi, Indus. Jhelum, Ravi, Beas. Jhelum. Using Fleming's right-hand rule, in which direction will current flow if the direction of the magnetic field is toward north? ठीक है. And the conductor is moving upward. ठीक है.
कंडक्टर, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, और क्या बोलता है, एंड डायरेक्टर मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर, तो ये किधर, इज टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट 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 वेस्ट। अगला, which article of the Constitution of India provide for a parliamentary form of government at the center? Parliamentary form of government at the center 79 और नहीं नहीं 79, देखो 71 72 तो है नहीं, 74 75 भी नहीं है, 76 से 70 भी नहीं है, 79 है। 80। Which city has recently launched climate mission aiming to become the world's first energy literate city? नहीं मालूम। Who has been appointed as the chairman of Paras or Bharti? नहीं मालूम। Who has become the first player to win two Grand Slams ATP finals titles and Davis Cups? नहीं मालूम। Which of the following kingdom was divided into subdivision called Ahars or Rashtra's, that means districts? Okay, यार ये पढ़ा है। Which of the following kingdoms was divided into subdivisions called Aharas और Rashtras? ये तो सब कुशान था ना, कुशान, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, छोड़। What is the largest part of northern plains and is formed of older alluvium? Older alluvium तो वही है ना, भावर, तेराई, भांगर और खादर, खादर खादर खादर। अगला, by which of the following methods do red algae produce? By which of the following do red algae produce? Micropropagation, fragmentation, cutting, grafting, micropropagation. red algae reproduce, fragmentation से होता नहीं है। लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य the fall from us of, लंगवीर नृत्य तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का है, नहीं गुजरात का है, गुजरात का। ठीक है, 12 हुए इसमें, ठीक। अगला आ जाओ इंग्लिश में। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इंडिया में कोई आएगा तो इमिग्रेशन, और इंडिया से बाहर जाएगा तो कोई इमिग्रेशन। फिर रिपेरिटेशन, डिपोर्टेशन, डिपोर्ट कर दिया। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन बैक टू देयर कंट्री, इमिग्रेट, इमिग्रेशन, ये तो अलग हो गया। रिपेरिटेशन, डिपोर्टेशन, हैज बीन डिपोर्टेड। रिपेरिटेशन, रिपेरिटेशन नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगला, एप्लॉम, हेजिटेशन, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, पोइज। व्हाट इज अपोजिट? एप्लॉम, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, पोइज, हेजिटेशन ही होगा फिर तो। अगला, neither the recent missile launches from the Ukraine, neither the recent missile launches from the Ukraine nor the subsequent Russian retaliation, neither और nor है ना, तो लास्ट वाले से, neither the subsequent retaliation was, are resolved, are, has resolved the escalating tension. डायरिया की स्पेलिंग DIARRRHEA, डायरिया, डायरिया। अगला, ओके, इसमें क्या है? PQRS, sparked international concern near Taiwan's maritime borders in the South China Sea. China's aggressive military exercises sparked international concern near Taiwan's maritime borders in the South China Sea. तो लास्ट में क्यों आएगा और शुरुआत कैसे होगा? चाइना से, तो आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा, लास्ट में क्यों खत्म। अगला क्वेश्चन, मनीफिसेंट, जेनरस, सेल्फिश, स्टिंगी, इंडिफरेंट। स्टिंगी, सेल्फिश, इंडिफरेंट, जेनरस। Okay. Which of the following, choose the sentence that correctly uses the idiom keep a straight face. Despite the hilarious pranks, he managed to keep a straight face and did not laugh at all. He always keeps a straight face when he gives exercise in the gym. नहीं. The chap kept a straight face while chopping the beginning. During the exam, I had to keep straight face to नहीं. ये है. अपने emotions को ना दिखाना. ISRO will launch the Gaganyaan mission in 2025. The Gaganyaan mission was launched. Will be launched. Will be launched by ISRO in 2025. The finance minister said India will achieve 7% growth this year. The finance minister said that India would achieve 75. India will would. पहला यही सही होगा, अगला क्वेश्चन। The एक पेड़ माँ का नाम 2.0 campaign along with various environmental initiatives dash a significant step toward India's commitment to achieving non-zero emissions by 2070. Okay. The एक पेड़ माँ के नाम 2.0 campaign along with various environment initiative aims represents a significant represents
initiatives represents a significant step. ठीक है. The Union Nation elected India to the Economical, Social Council for the term of 2017. तो इसमें क्या हो जाएगा? इंडिया was नहीं कैपेसिटी में करना है ना. तो इंडिया इज इलेक्टेड हो गया ना. तो इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द. सही है. अगला. India has been elected to the UN National Economic and Social Cause, which aims to dash sustainable development across members, which aims to bring up sustainable development. Before making any decisions, she wanted to understand the why and wherefores of the company's sudden policy change. ठीक है. तो इसका मीनिंग ऑफ द idiom पूछ रहा है. Before making any decisions, he wanted to understand the why and wherefores of the company's sudden policy change. The reason and the explanation behind something, the consequence and outcome of action, why and wherefores, reasons, past history and future plans, the benefits and drawbacks. Course. Before making any decisions, he wanted to understand the why and forces of the company's sudden policy decision. Reasons and the explanation behind something. ये सही है. The consequences and outcomes of नहीं. The benefits and drawbacks नहीं. The past history and the future नहीं है. During their heated debate yesterday, Elon Musk and Donald Trump exchanged fierce argument during their heated debate on topics ranging from social warning to trade. So Elon Musk and Donald Trump Q से शुरू होगा. During their heated debate yesterday, exchanged fierce arguments on R के बाद S, QPRS. अगला क्वेश्चन था. The performance of the team was more good than expected. Was better than expected. Find a sentence in which the spelling of the word mellifluence, MELLI, MELLI, ठीक है. फ्लुएंस ये गलत हो गया यहाँ पे. मेलीफ्लुएंस भी गलत होगा. फ्लुएंस, मेलीफ्लुएंस है. फ्लुएंस है. मेलीफ्लुएंस एंड क्लैरिटी. The presentation was praised for its mellifluence and clarity. हाँ ये सही है. अगला. Glee, joy, delight, mirth, sorrow. उसके बाद the heated exchange between the Donald Trump and along with their supporters on social media dominated the news story. As the heated exchange between the Donald Trump and along with their the heated exchanges between this and this have dominated the news story. Was dominated the internet yesterday या तो फिर had आना चाहिए ना. Had dominated the heated exchanges between Donald Trump and Elon Musk along with their supporters on social media have dominated the news yesterday. नहीं, was dominated the news. नहीं, was dominated the news. Was dominated नहीं, ये was तो आएगा नहीं. Is dominated भी नहीं आएगा. Has dominated या have dominated have होगा. His veracity for knowledge was impressive and the veracity of his claims was never questioned. Okay. His veracity for knowledge was impressive and the veracity of his claims. ये सही है. अगला. Something that is very lively, clever or impressive. Tedious, scintillating, mundane. Something that is very lively, clever and impressive. Scintillating नहीं मालूम. अगला. India's youthful population is often seen as a source of great potential with the possibility of driving economical growth and innovation. However, a significant challenge lies in the fact that a large number of young people are the essential skills needed in the modern force are deprived of, are missing, are mastering, are ignoring, are acquiring. एक सेकंड ना, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था एक बार वो पढ़ लेंगे. India's youthful population is often seen as a source of great potential with the possibility of driving economic growth and innovation. However, significant challenge lies in the fact that a large number of people are deprived of. तो मतलब उनके पास है नहीं. missing होगा. are missing the essential skills needed in the modern workforce. Although millions of students graduated from university and college every year, their academic qualification often do not dash the practical ability required for university. Do not complete, do not highlight, do not translate into, do not approve of the practical, do not approve of the practical abilities required by industry. This dash has created
This challenge, okay, this challenge has created a notable gap between the demand for skill levels and the availability of the workforce that meets those standards. The mismatch between the education system and the requirement of employees has led to high levels of unemployment among the youth. ठीक है? Among the youth, as a result, many young people are forced to accept low-paying jobs that do not make full use of their potential, while employees continue to dash for continue to while employers continue to struggle for candidates with relevant expertise. ये सही है. आ जाओ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पे. इसमें क्या है 32 में कितना ऐड किया मैंने 32 में मैंने 11 ऐड किया इसमें कितना 12 ऐड किया इसमें कितना इसमें 8 ऐड किया तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. इसमें 32 में कितना 32 और 55 के बीच में डिफरेंस कितना है 23. 55 और 98 के बीच में कितना डिफरेंस है 43. 43 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है नहीं ये कुछ और बन रहा है यार 32 43 55 63 98 117 और कितना था 261 और 369 करेक्ट यही है. 32 में कितना ऐड किया +11 इसमें कितना ऐड किया +12 इसमें कितना ऐड किया 5 और 3 8 8 ऐड किया इसमें 55 में कितना ऐड किया 8 ठीक है. इसमें कितना ऐड किया मैंने 8 से 3 की 5 35 +35 ठीक है. फिर इसमें कितना ऐड किया 17 2 19 +19 और इसमें कितना ऐड किया 17 44 44 144 144 7 4 11 बन के 4 1 5 6 और ठीक है. और इसके बीच 9 में से 1 गई 8 6 में से 6 0 और ये 108 ठीक है. 11 12 में 1 इसमें माइनस का 4 फिर कितना हुआ 27 8 35 फिर इसमें कितना हुआ फिर माइनस कितना किया 16 फिर कितना ऐड हुआ इसमें 16 तो 125 ऐड हो गया फिर माइनस कितना हो गया फिर माइनस 36 अब कितना ऐड होगा प्लस 216 216 इसमें ऐड करो 16 8 24 और 1 2 1 3 324 9 4 13 लास्ट में 3 आएगा प्लस माइनस प्लस सॉरी 6 कह रहा 7 का क्यूब ऐड होगा ना 343 ठीक है 43 और 8 कितना हो जाएगा 51 1 3 1 4 451 451 का इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10 1 कैरी 6 5 11 1 12 1 कैरी 4 3 7 1 8 820 ये सही है. अगला क्वेश्चन क्या है एफ 6 6 5 11 11 11 11 4 15 15 15 15 7 22 एक सेकंड एफ लास्ट में देखो 8 8 और 4 12 एक सेकंड होना 8 और 4 12 8 और 4 12 आया ठीक 12 12 5 17 आया करेक्ट 17 17 6 23 आया करेक्ट तो 7 आएगा 23 और 7 30 30 मतलब लास्ट में डी आएगा तो एक ही ऑप्शन बनना है खत्म. अगला क्वेश्चन क्या है सीक्वेंस ऑफ द फोल्डर पेपर का देख रखा है ठीक है. तो ये देखो कैसा बनेगा पहली चीज तो ये पूरा ये ऐसा बनेगा और ये 2 बनेंगे एक बन गया ये गलत हो गया यहाँ पे 2 बनेंगे ये ऑप्शन सही है खत्म. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द कोडेड लैंग्वेज ट्राइस्ट इज रिटन एज IDK या ईगर इज रिटन एज दिस ठीक है. अच्छा एक बता टी का अपोजिट आई दिख रहा है मुझे सीधे यहाँ से और आर का अपोजिट के दिख रहा है इसमें भी आर का अपोजिट के दिख रहा है तो आर का अपोजिट क्या आएगा के से शुरू हो गया. ई का अपोजिट क्या है ई का अपोजिट एक्स है तो एक्स आएगा के एक्स ठीक है. डी का अपोजिट क्या है डी का वही मालूम ना ठीक है. तो लेकिन ये कर क्या रहा है 5 7 माइनस कर दो 19 में से 9 माइनस कर दो ना 5 26 5 31 31 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 31 माइनस 9 करो 31 माइनस 7 एक सेकंड 20 में से जी एच आई ठीक है आर का उल्टा आई जे के ओके वाई का उल्टा बी सी डी एस का उल्टा एच आई जे और टी का उल्टा फिर से तो आर का उल्टा क्या आई का क्या आ गया एक्स का उल्टा क्या आएगा सी डी ई लास्ट में ई आएगा ठीक है. उसके बाद ओ का उल्टा क्या है एल एम एन आ जाएगा एन लास्ट में एन आएगा खत्म एक ही ऑप्शन है ये. अब बस कंफर्म और कर लो एक बार के एक्स तो कर लिया बीच वाला कर लो. डी का उल्टा क्या है
डी डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी सिंबल ऑन द अपोजिट ऑफ द नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के अपोजिट में क्या आएगा, एक सेकंड, परसेंटेज, परसेंटेज ये रहा। अगला क्वेश्चन, ओके पॉलिटी इज रिलेटेड टू दिस, पॉलिटी मतलब 16 दूनी 32, ठीक है, 15 दूनी 30, नहीं नहीं नहीं, 20, 16 ऐड कर दिया, 15 16, ये भी नहीं हो रहा, हैवरी हैवरी 8 दूनी 16 करेक्ट, 5 का क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2 का स्क्वायर, 2 2 दूनी 4, 18 का स्क्वायर लिख दिया, नहीं नहीं, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 18, अच्छा ओके बॉबिल का स्क्वायर कर दोगे तो बॉबिल का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें एक का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 128 हो गया। उसके 5 का स्क्वायर 25, 128 25, ठीक है, 2 ऑप्शन रह गया। उसके बाद क्या हुआ, 13 13 दूनी 26, 9 9 9 का स्क्वायर 81 81 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 81 के बाद, 81 के बाद आएगा 15 का स्क्वायर 225, ये आया, ये ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 एकदम 17, 17 में 8 ऐड किया, 11 में 4 ऐड किया, 17 दूनी 34 माइनस 9, 11 दूनी 22 माइनस 9, 8 दूनी 16 16, 16 और 8 24, और 13 दूनी 26 प्लस 2, फिर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 13 में कितना, एक समझ ना, 16 8 24 करेक्ट, 11 में कितना 4 ऐड हुआ, 17 में कितना हुआ 8, कितना 17 प्लस 8 25 करेक्ट, ये आया ठीक। 11 में 4 ऐड किया तो कितना आया 15 करेक्ट, 8 में कितना ऐड किया 16, 16 ऐड किया 24, 13 में कितना ऐड किया, 13 में 15 ऐड किया तब 28 आया। तो ये गलती होगी क्योंकि 4 के मल्टीपल सब में ऐड हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी इसको एक बार और देख लेंगे, मार्क पर भी कर देते हैं अभी। ऑल ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मर्चेंट, MER CHANT आर इन अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, क्या सी, फिर ई, GHI H आएगा, फिर इसके बाद है MNRST R और लास्ट में T, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड मतलब ई, एंड वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, एम। तो 5 और 13 8 7 लोग हैं, 7, ओके 63, माइनस मतलब डिवाइड, 9 आ गया, 9 आ गया, और क्रॉस मतलब प्लस, प्लस का 39, और डिवाइड मतलब 39 इंटू 4, और माइनस का 21 करेक्ट, यही है। तो 9 चौको 4 3 12 120 हो गया, 9 चौको 36 और 9 45, 45 में से 21 गई तो 24 आ जाएगा, तो 144 आंसर आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, रेंट, IREVW, एन का उल्टा MM-1, ओके। तो आई आर का उल्टा आई करो पहले तो जे का उल्टा क्या आ जाएगा, जे का उल्टा क्या होता है, पी, नहीं नहीं, जे का उल्टा जे, जो टी, जे 10 तो 17, जे क्यू, हाँ क्यू आएगा, तो क्यू आ गया ठीक, क्यू से बन जाएगा। इसका ई में क्या होगा, ई वी डब्ल्यू, यू का उल्टा क्या होगा, एफ जी, ठीक है। एन का उल्टा क्या आएगा, 14 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, 14 माइनस 2 यानी नहीं, 14 का उल्टा एम, एम माइनस 1, एल का उल्टा क्या आएगा, एल का उल्टा ओ, ओ माइनस 1, ठीक है, तो यही बन गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 79 में से ये माइनस किया तो 20, 20 और 44, इसमें से माइनस किया कितना 20, और इसमें कितना 44, 20 माइनस किया और इसमें से कितना 15, 15 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 59, तो 59 में कितना 15 प्लस करोगे, 9 5 14, 5 1 6 7, 74 आया, 79 में 20 ऐड कर दो तो 65 85, ये खत्म, ये खत्म, 80 130, इसमें देखो 5 ऐड करो, इसमें कितना आएगा, 5 ऐड ही नहीं होगा, 15 ऐड ही नहीं होगा ना, 15 नहीं ऐड हो रहा है इसमें, इसमें 15 ऐड हो रहा है ना, 68 और 5 73 83, ये हो रहा है, खत्म, इसमें ही आंसर आ गया। इसमें 13 15 इसमें भी ऐड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, 25 और भाई 25 और 39 के बीच में कितना है, 14 का डिफरेंस है ना, 14 14, लेकिन 5 और 13, 13 5 नहीं, ये भी नहीं हो रहा, 25 और 14 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बीच में, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 36 और 9 का डिफरेंस है, 18 और 31 में कितने का डिफरेंस है, वह मतलब 18 3 23, नहीं 13, 13 का डिफरेंस इसमें, और 13 और 24 में डिफरेंस कितने का, 11 का, ठीक। अब ये 14 में से माइनस 6 करोगी तो 8 आ जाएगा करेक्ट, 9 का 9 ही बता रहा है इसमें, इसमें 13 में से 6 गई तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 6, 11 में से 6 गई कितनी आएंगे, 5 आना चाहिए,
तो 5 नहीं आ रहा, फिर कुछ गड़बड़ है। देखो 14 में से 6 गई तो 8, ठीक 9 आया इनके बीच में डिफरेंस, तो 9 से 9 कोई मतलब ही नहीं आया। और इसके बीच में 18 13 31 के बीच में क्या डिफरेंस है? 13 13 13 13 13 माइनस 6 7 7 आना चाहिए। 13 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है? 11 11 11 में से 6 गई तो 5 आना चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। 4 तो 6 3, छोड़ो। इसमें क्या 17 को क्या इसमें बोला? विच टू डिजिट्स इन साइंस आर टू बी इंटरचेंज सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। 5 185 चला जाएगा, 17 का 185, 17 एकम 17 नहीं जाएगा। 48 का मतलब ही नहीं है, डिवाइड की जगह माइनस कर दिया तो माइनस और डिवाइड, फिर 13 से नहीं कटेगा तो ये गलत हो गया यहाँ पे। 8 और 3 को बदल दें 153, 153 अगर 153 भी ले आए हम कह रहे चलो ठीक है, और 17 से डिवाइड होगा 17 9 जा 963 963 956, हाँ तो ये कट जाएगा, तो ये वाला हो सकता है। 17 9 जा आ गया 153 करेक्ट, और माइनस 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 की जगह प्लस, और 17 चौक 17 4 68 और माइनस का 30, तो ये आ गया 38 यहाँ से आ गया और प्लस 9, ये यहाँ गलती हो गई। 8 और 7 का 157 से कटेगा ही नहीं है, डिवाइड चला दिया तो 8 आ गया 158, और प्लस की जगह ले आए इसको तो अभी नहीं कटेगा ये तो आएगा नहीं। 3 की जगह 5 5 की जगह 3 को ले आए 138, फिर भी नहीं बनेगा, यही बनेगा लेकिन प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और माइनस आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया 3, अरे सॉरी सॉरी गलती होगी ना मेरे से, 8 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगी 18, सॉरी सॉरी 17 9 जा 17 9 जा 153 करेक्ट, यहाँ से 9 आ गया, और माइनस की जगह प्लस, और 18 18 4 जा 72 17 18 4 जा 72 72, और माइनस माइनस का 30, ये बनना है। एक सेकंड, फिर 5 को अगर मैं 185 ले आया, चलो मैंने कहा ठीक है, माइनस कर दिया तुमने, माइनस कर दिया 17 और डिवाइडेड बाई 13, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। 78 की जगह 7 की जगह 8 ले आया 157, और माइनस का 147 प्लस 18, ठीक 18, और डिवाइड बाई माइनस 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 30, यही तो है। फिर ये कटेगा नहीं इससे, तो ये भी गलत हो गया। 3 और 5 की जगह ले आए, 3 और 5 को एक जगह ले आए तो 3 की जगह 138, ठीक 138 डिवाइडेड बाई 17 7 17 से जाएगा नहीं यार ये, इसको बाद ही में करेंगे इस क्वेश्चन को। 18 18 5 23 23 पंचे, ठीक है 21 5 21 4 25, ये तो नहीं हो रहा। 18 और 13 कितना हुआ? 18 13 23 18 कितना बचा? 5, इसके बीच में कितना 4 का रेफरेंस है, 13 निगुना 117, ये भी नहीं हो रहा। 25 ये कितना हुआ? 46 46 हो गया ये, 46 इंटू 2 98 3 छत्तीस 18 चौथी 138, ठीक है, और ये कितना 18 18 18 3 54, और 23 3 69, 9 4 13 1 3 6 5 11 123, 123 में से कितना 18 माइनस करो, इसमें से 18 माइनस करोगे नहीं, इसमें से कितना 117 माइनस करोगे तो कितना 8 में 7 गई 1, और 3 में से 1 गई 2 21, इसमें से 21 माइनस करोगे तो कुछ गलती हो गई है, इसके बाद में करेंगे। क्यों? अरे यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, टाइम तो देखे ही मैंने। 17 17 माइनस 2 15, 2 माइनस 2 ठीक है, तो 21 माइनस 2 19, 8 माइनस 2 गलत, 4 माइनस 2 गलत, ये गलत, पहला ही ऑप्शन आ गया खत्म। बाकी एक बार और 13 माइनस 2 11, और 25 माइनस 2 23, और 15 माइनस 2 13, खत्म। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फिफ्थ फिगर, ठीक है, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, यहाँ से 3 रेक्टेंगल आए, 3 रेक्टेंगल आए, एक रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल, और ये 3 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल यहाँ से आए, 3 के बाद 3 के बाद क्या हुआ? एक 4 रेक्टेंगल 5 रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल, इसके बाद 6 रेक्टेंगल के बाद 7 रेक्टेंगल 8 रेक्टेंगल, ठीक 8 रेक्टेंगल के बाद ये पूरा 9 रेक्टेंगल, 9 रेक्टेंगल, 9 ही रेक्टेंगल आए हैं। देखो एक रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल और ये पूरा 3 रेक्टेंगल, करेक्ट। ऐसी एक रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल और ये पूरा 3 रेक्टेंगल, 3 और 3 6 हो गए, 6 के बाद ये कितना हो गया? 7 रेक्टेंगल, 7 रेक्टेंगल, 7 और 3 10 रेक्टेंगल, 7 और 3 10 रेक्टेंगल, करेक्ट। 10 रेक्टेंगल है फिलहाल में, बाकी और कोई बनेगा तो देखते हैं बाद में। नहीं 10 ही रेक्टेंगल है, बाकी इसको मार्क पर
डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल। कुछ डॉक्टर मैरिड पीपल भी होंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स भी होंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स मैरिड पीपल होंगे। देखो, जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर मैरिड पीपल भी आएंगे और डॉक्टर्स भी आएंगे, वो आपस में भी हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला। हियरकी रैंक्ड, इन्फिनिटी फिक्स्ड नहीं। इक्वेशन सॉल्व, क्रोनोलॉजी सिक्वेंशियल। अगला। आर 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 ई ई ई उल्टी कैसे है इसमें, ये गलत हो गया। ई सही है, ई सही है, डब्ल्यू सही है, डब्ल्यू सही है। तो टू आएगा, फोर कहाँ से आ गया, तो ये वाला गलत हो गया। टू आ गया, पहला ऑप्शन ही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पी प्लस एस। पी प्लस एस का मतलब, पी प्लस एस का मतलब है मेरा, पी इज द मदर ऑफ एस। पी इज द मदर ऑफ, पी इज द मदर ऑफ एस, ठीक है। और एस डिवाइडेड बाई, एस डिवाइडेड बाई मतलब एस इज द फादर ऑफ टी। एस इज द फादर ऑफ टी, उसके बाद टी माइनस आर, टी आर माइनस आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर। टी इज द ब्रदर ऑफ आर। आर आर क्रॉस एम, आर इज द वाइफ ऑफ एम। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द हाउ इज एम्स वाइफ रिलेटेड, एम्स की वाइफ जो है वो रिलेटेड टू पी किस प्रकार है, उसकी वो क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, आशीष इज 25th फ्रॉम द टॉप। तो आशीष के ऊपर 24 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। एंड द मिस्ती हुज 9 रैंक बिलो आशीष, ठीक है, 9 रैंक बिलो आशीष, मिस्ती इज 40th मतलब 39 नीचे लोग इसके हैं। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जाम टू दैट हु फेल्ड इन द एग्जाम इज दिस। इन अमंग द पास्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितने हो गए, मुझे तो बस इतना बताओ। 24 8 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 39 कितना हुआ, 9 4 13 बन करी 3 3 6 1 7 73। एंड इज 40th फ्रॉम द बॉटम, रैंक 9 रैंक्स बिलो, ठीक है। 24 ऊपर है इसके। 27 था तो 26 है ना ऊपर। 24th बोला मैं भी। 26, 26 और 8 34, 34 प्लस 2 36, 36 प्लस 39 ये कितना हुआ, 9 6 15 वन कैरी 3 3 6 1 7 75। अब 75 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, हु फेल्ड एंड, 75 की वैल्यू 25 है। 25 दिए 75, तो 25 पंचे 125, टोटल नंबर स्टूडेंट 25 125 है। अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? ओके। पी नहीं, ओ पी, नहीं नहीं, पी आर डैश 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 टी एस आर पी ओ, टी एस आर पी, एक सेकेंड, ओ पी, ओ पी आर एस, ओ पी आर एस, तो ओ आ गया पहले। ओ पी आर एस टी टी, ओ आर एस टी टी, आर एस टी टी एस आर पी ओ, हाँ, एस ओ पी आर एस टी टी, करेक्ट। उसके बाद है एस आर पी ओ, एस आर पी ओ, ओ पी आर एस टी टी एस आर पी ओ पी आर एस टी टी एस आर। तो लास्ट में आएगा ओ एस आर, लास्ट में ओ एस आर आएगा। तीन ऑप्शन हो गए। स्टार्टिंग में आएगा ओ एस पी पी, ओ एस पी पी खत्म, ओ एस एस पी पी, ओ एस एस पी पी, ये वाला सही है, ओ एस एस पी पी पहला ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले वाले में ये यहाँ से चला गया, सी यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। इसमें क्या हुआ, डब्बा उठ के यहाँ से चला गया, आई उठ के यहाँ जाएगा। पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन है, सीधा ऑप्शन आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 11, 11 रिलेटेड टू 58। 11 पंचे 55 प्लस 3, ठीक है। 8 पंच 40 प्लस 3, तो 24 पंचे 120 प्लस 3 123 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहले दूसरे दोनों गलत हो गए, तीसरे में बन गया ये फिगर। अब ये इन दोनों में बन रहा है, लेकिन इसने क्या बोला, सेंटर से ऊपर जा रहा होगा और ये बहुत आगे निकल गया, तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन है, खत्म। अगला क्वेश्चन। तो जनरल इंटेलिजेंस में हमने कितने किए हैं, 22 सवाल किए हैं और मार्क्स फॉर रिव्यू काफी है। काउंट में आ जाओ। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 161 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 56, ठीक है। 56 लोग सबके थे। द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट आर 64, ठीक है। 64 पास लोगों के थे एंड डेट ऑफ द स्टूडेंट को फेल्ड इन 36 थे। और टोटल कितने थे, 56, टोटल 56 है। तो 36 में से ये कितना गया, ये 20 आया, और 64 में से कितना गया, 4 और 4 8, ठीक। 20 और 8 28, 28 बताओ, 4 पंचे 20,
4 दूनी 8, 5 2 7, 7 की वैल्यू तुम्हारी 161 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 3 21, मतलब 23, एक की वैल्यू 23 है। तो बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट फील्ड, फील्ड कितने हुए थे 8, 8 नहीं फेल हुए 23 दूनी 46, 46 बच्चे फेल हुए थे। अगला क्वेश्चन एलिगेशन से फटाक सवाल हो गया ये वाला। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच सेटिस्फाई इक्वेशन दिस इनटू दिस। तो देखो 31 की पावर ऊपर 7 चल रही है ऊपर, और इधर 3 की पावर 3 चल रही है। फिर क्या हुआ, फिर 31 की पावर 13, और नीचे अब कितना आ गया यहाँ पे, नीचे 3 की पावर 7, और इधर कितना चल रहा है 31 की पावर 3, और इधर कितना चल रहा है 3 की पावर 13। अब 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 13 7 20, और ऊपर कितनी है 3 की पावर 3, तो नीचे आ गई 3 की पावर 17, करेक्ट। हाँ, और ऊपर कितनी चल रही है 3, 10 गया 17, 31 की पावर भी 17 आ गई। अभी 17 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, नहीं नहीं, और उसने उल्टा कर दिया, पलट दिया उसने, तो -17 इज इक्वल टू 8k-9, करेक्ट, ये आया। अब यहाँ से ही जाएगा तो माइनस का 9 मतलब माइनस का 8, तो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, from the top of the 880 meter high building, the angle of depression of the top and bottom of a lamp is post। ठीक है, ये एक लैंप पोस्ट है, इसके टॉप पे देख रहा है, इसके बॉटम पे देख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो फ्रॉम द 80 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 80 मीटर इसकी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉप का डिप्रेशन एंगल कितना है, टॉप का डिप्रेशन एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। और एंड बॉटम ऑफ द लैंप इसकी 60 है, ये 60 के बराबर है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 60 है तो ये आ जाएगा कितना, ये √3 की वैल्यू, तो 80/√3 ये आया। और ये अगर इतना है 1, तो ये √3 किसके बराबर है, √3 इज इक्वल टू दिस, तो 3, तो ये आ जाएगा 80/3। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। अब 80/3, ये पूरी 80/3 और पूरा 80, 80 माइनस 80/3 कितना आएगा, 160/3, 160/3 का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, Vijay gives a 6-digit number this to Chandan to check the divisibility. Chandan tells the Vijay that the number is divisible at 51. Chandan asks Vijay, if we rearrange the digit of this number in descending order, then which of the number will it will always be divisible? 3 से डिवाइड कर फिर भी होगा वो, खत्म आंसर। 3 से तो फिर भी डिवाइड होगा। This to Chandan check the divisibility। तो 6 3 9 9 9 18, 18 18 1 19 20 20 से 24, 3 से तो हमेशा डिवाइड होगा, खत्म। और रीअरेंज कर देगा अगर इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो भी। Sikhar buys a bike priced this and he pays 2000 at once and rest after 18 months, on which he charges simple interest at the rate of 15% per annum. To find the amount he pays for the bike। देखो सिर्फ 97 में से 20,000 चले गए तो कितने बचे 77,000। इस 70,000 पे तुम्हें कितना 18 महीने मतलब 15 और कितना 7 22 22%, 22% का तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ा। 22% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 3 जीरो जीरो चलेगा, 225 इंटू 77 ये तुम्हें देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द बाइक कितना आएगा, ठीक है 25 सत्ते 175, एक कैरी 7 दूनी 14 15 15 75 इंटू 11 55 77 5 22 82 8 कैरी 8 कैरी 165 और 8 173 17325 ये दिया। और ऊपर से पहले कितना दे चुका था 97,000, इसमें ऐड करो 97,000 मतलब 325 7 7 14 1 कैरी 9 1 10 9 1 10 11 11 11 4 3 5 ये इतना पैसा देगा वो। अगला फाइंड द वैल्यू कॉस 75 प्लस कॉस 15। अरे यार हम एक चीज बताओ, कॉस 75 इज इक्वल टू साइन 15। अब साइन 15 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, साइन 15 प्लस कॉस 15, साइन 15 प्लस कॉस 15। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं तो मुझे निकालनी पड़ेगी। निकालनी कैसे पड़ेगी, तो साइन 45 की निकाल लो, साइन 45 माइनस 30 मान लो इसको, तो साइन 45 मतलब साइन 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ठीक है। माइनस अब कितना, अब फिर से √2 आ जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू 1 आ गई, करेक्ट 1 आ गई, 1 आ गई साइन 30 की वैल्यू। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो √3 - 1/2 ये आ गई तुम्हारी साइन 15 की वैल्यू। अच्छा अगर एक चीज बताओ 15 डिग्री में साइन 15 की वैल्यू तुम्हारी √3 - 1 है, ठीक, और ये 2√2 है, तो 3 1 4 -2√3 4 3 7 3 और 1 4 4 - 2√3 यही आएगा 4 - 2√3। इसको माइनस करो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 - 4 करोगे कितना आएगा 8 - 4 मतलब 4 4 + 2√3 4 + 2√3 को अगर तुम लिखोगे फिर से तो 3√3 + 1 तो ये आ जाएगा √3 + 1, ठीक। अब
कॉस 15 की वैल्यू कितनी आ गई फिर यहाँ से आ गई, इन दोनों को ऐड करोगे तो रूट थ्री चला गया, तो 2 से 2 चलेगा, √3/2 ये आ गया, यही आएगा। देख सकते इसको ऐड किया तुमने, कॉस 15 की वैल्यू निकाली होगा, साइन 15 प्लस कॉस 15 कितना आया, √3+1 √3-1, 3 और 4 4 4 8, ठीक है। हाँ अब √3+1 √3-1 ये आया दोनों, उनको ऐड किया, इनको ऐड करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2√3/2 चल ही रहा है, √2 चला गया, √3/√2 आएगा, √3/√2 मतलब √6/√2, √6/2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, विच स्कूल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एग्जैक्टली 50% मार्क्स, नंबर स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स मोर देन 50%, ठीक है, परसेंटेज विच नंबर स्कूल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इसका 55%, और इसका 55% कितना आएगा, 55% ऑफ दिस, 55 33 330 आया, ठीक। इसका इसका कितना 40% कितना आएगा, 4 4 4 16 160, इसमें कितना आएगा 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5, 5 7 35, 5 7 35, करेक्ट, 55 75, तो हाईएस्ट पूछा ना, हाईएस्ट नंबर, तो सबसे पहले अभी तक तो ए ही दिख रहा है, उसके बाद क्या बचा, बी बच्चे कर लिया, डी और ई रह गया, 35 आएगा और इसका 25 आएगा, सीधी सीधी बात, तो बी ऑप्शन है, सीधा ए ऑप्शन है, खत्म। सबसे ज्यादा मोर देन एग्जैक्टली 50 मार्क्स, मोर देन 50 मार्क्स, लेस देन 50 मार्क्स, ओके। माइनस 270 करोगे तो कितना आएगा, 330 माइनस 70, 270 कितना आएगा, 60, 360 और ये कितना 600 आ गया ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50%, नंबर ऑफ मार्क्स स्कोरिंग मोर देन 50%, परसेंटेज, तो बस परसेंटेज निकाला तुमने, 6 5 30, 6 5 30, 333 आया यहाँ से, और ये 270 आया। अब लेस देन 50% है, तो फिर स्टूडेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोर एग्जैक्टली 50% मार्क्स, स्कूल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग एग्जैक्टली 50% मार्क्स, अब नंबर स्टूडेंट 270, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50%, ये इतना है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हुए थे, 330, अब इसमें 330 थे, इसमें 4 40, ठीक है, 40% थे, 160, अच्छा 50% इसमें जीरो हो गए, इसमें तो जीरो हो गए, इसमें कितना है ये, 40 चौके 160, 160 और 80, 280, तो 120 बच गया वहाँ, इसमें 120 हो जाएगा बी में, ठीक है, इसमें कितना 20% मतलब हमने कितना 75 निकाला, 375, ये तो जीरो हो गया, 10 35 200, 220 प्लस 35 कितना हुआ, 255, 255 को माइनस करना है, 305 से 95 आया यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना आया 25, 25 या 75, 75 275, सबसे ज्यादा आया तुम्हारा 120, बी में ही आया, बी ऑप्शन है इसका। भाई इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इफ द सम ऑफ whose इंटीरियर एंगल इज 36, सम ऑफ 3600, तो क्या था आंसर, n-2 इंटू पाई, तो 180 से इसको डिवाइड करोगे 20, तो 22, और n-3 इंटू n/(n-3/2), ये तुम्हारा डायगोनल आता है, तो 22 22 इंटू 19 अपॉन 2, 11 11 इंटू 9 19, 209। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट कोका कोला पेप्सी फंटा, ठीक है, हैज बीन टेबुलेटेड बिलो, ठीक है, हाउ मच इज द टोटल परसेंटेज अप्रोक्सीमेट इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम 2020 से 2021, टोटल कितना हो गया ये, 54, देखो 4 3, देखो 4 3 7 8 7 15, वन कैरी 5 5 10, 10 6 16 16 1 17 1 18, 185, और ये कितना हुआ यहाँ पे, 8 6 14 14 8 22 22 7 29, दो कैरी 5 5 10 2 12 12 12 6 18 18 2 20, तो 209, कितना इंक्रीमेंट हो गया इसमें, 15 और 9 24, 24 अपॉन 185 इंटू 100, 18 एकम 18, 18 9 27, तो 15% से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन 10% से ज्यादा आएगा, तो 13% आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 6, मान लो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1476 दे रखा है तुम्हें, ठीक है, एंड द एलसीएम द टू नंबर इज 120, 120, व्हाट इज द एचसीएफ पूछ रखा है, ठीक है, तो मुझे तो बस ए बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू कितना आएगा 36, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, 1476, 1476 माइनस 36 कितना करेगा 40, और 14 इसको डिवाइड करोगे 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 720, तो मतलब ए बी की वैल्यू तुम्हारी आ गई 720, अब 720 इसकी आ गई, तो एलसीएम तुम्हें पता ही है 6, तो 6 आ जाएगा इसका एचसीएफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
Pipe A can fill a tank of 360 degree. पाइप ए ने फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 360 लीटर इन 4.5 दूनी 7 4 दूनी 8 9 9/2 मिनट में अगर भर रहा है, ठीक है, 360 का, तो 9 चौका 80, तो 80 इसकी कैपेसिटी आ गई। पाइप बी कैन फिल द टैंक ऑफ 870। ओके 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 ओके, समझ गया। तो तुम्हें कैपेसिटी निकालनी है कुल मिला के 80 कैपेसिटी इसकी आ गई, 1 मिनट में ही 80 इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। पाइप बी कैन दिस व्हाट मिनिमम टेक टू कैपेसिटी ऑफ दिस, तो 360 और 870 का तुम वो निकालो पहले, तो 360 पूरा बना रहने दो, इधर 29 बचा, यही हुआ। तो 80 इंटू 29, ये इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 9 3 27, 27 दूनी 29, 29 से 29/3, तो 29 से 29 चला गया, और 360 में से 360 मतलब 1080, ये आया 360 इंटू 3, करेक्ट। और टोटल काम मेरा कितना था? 360 इंटू 3। अब इसने क्या बोला कि इतने लीटर को भरने में कितना टाइम लगाएगा। अब 1785 अपॉन 0, 8 9 72 7 कैरी, ये कितना 1080 पहले से ही है, ये कितना है 0, ये कितना है, एक सेकंड रुकना, ये एक सेकंड। अगर 360 लीटर को ये 4.5 मिनट मतलब 9/2 मिनट में भरता है, तो 9 चौको 40, तो 1 मिनट में 80 लीटर भरता है, ठीक। इसकी ये एफिशिएंसी आ गई। ये कितना 9 3 27 2 29, 9 3 27 2 29/3 इंटू 87, 29 3 30 3 90, 90 लीटर भरता है, ठीक है। इन दोनों की एक एक एक, एक तो 1 मिनट में ये दोनों मिलके कितना भरेंगे? 9 1 17, 170 लीटर भरेंगे, तो 1785, ठीक। इससे डिवाइड करो इसको, 17850, 170 कितना बचा? 85, 85 है तो 0 10.5, 10.5, 10.5 मतलब 10.5 मिनट में भर देंगे। अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू -8.5 बी इक्वल टू दिस देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ए प्लस बी को इनको सबको ऐड करो जरा। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? ए प्लस बी 4 3 7, देखो 6 4 10, 8 8 5 13 1 14 1 कैरी, और ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यूब प्लस 0 आंसर आ गया, सीधा सीधा ही आंसर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, खत्म यहीं से। इन a circular race of 1000 meter long track, P and Q started at the same time from the same place with speed 27 kilometer per hour and pace respectively. How much time after the start will they meet next to the starting point when they running in a, बस इतना लास्ट वाला लाइन नहीं पता तो समझ में आया, तो इसको हिंदी कर लेते हैं। ओके, दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद वे अगली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ओके, ठीक है। ये 27, ये 36, ये 27 हुआ, ये 36 हुआ, और 1000 मीटर है। 27 और 36 कितना हुआ? 7 6 13, 7 और 6 13 1 कैरी, 3 2 5 1 6 63, 63 हुआ। 63 इंटू 5 ऊपर 18 चला गया, 9 7 63, 9 दूनी 18, करेक्ट। अब 5 चौको 5 5 20 2500, 200, 200 दूनी 400, 400 बाई 7 मतलब इतना सेकंड अभी लगेंगे, लेकिन इनमें पूरा करने में इसको 400 सेकंड लगने चाहिए, तो 7 रिवॉल्यूशन लगेंगे टोटल, तो 400 सेकंड मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर। इसको बाकी बाद में एक बार और दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अबाउट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्सपेंड डैश अबाउट एक्स इज इक्वल टू -3। ओके ओके ओके, समझ गया। एक्स स्क्वायर 4 4, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर है ही मेरे पास, मुझे माइनस का कितना 3 दूनी 6, तो प्लस का माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 6x प्लस का 9x हो जाएगा यहाँ, और कितना चाहिए? प्लस का 4, और माइनस का यहाँ कितना चाहिए इसे? एक्स स्क्वायर -6 प्लस का एक और चाहिए, प्लस का क्या चाहिए होगा इसे? प्लस का 9, और ये माइनस का 9, करेक्ट, यही है। प्लस का 6x, अरे यार सॉरी, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 मतलब प्लस का 6x चाहिए इसे, प्लस का 6x, तो माइनस का 3x यहाँ आ गया, और क्या चाहिए? प्लस का 9 चाहिए,
तो प्लस का 9 मतलब माइनस का 5 एक आ गया, करेक्ट ये हो गया यहाँ पे हो गया। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें क्या बचा, माइनस का 3 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस अब ये बचा एक चीज़ और, अब इस पे एक चीज़ बचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्लस का माइनस का 4 प्लस का 4 ये हो सकता है। तो यहाँ से आ गया तो 3 कॉमन ले लिया माइनस का मैंने, फिर से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स प्लस 3 प्लस 4, ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 एक्स प्लस 4, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्लास एक्स मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, द गिवन चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास एक्स स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट वेयर द टोटल मार्क्स इज 1800, ठीक है। इंग्लिश 60 डिग्री 62 डिग्री, इन विच सब्जेक्ट विल द स्टूडेंट गेट 310, 310 कितने करेगा। अच्छा अच्छा, 360 की वैल्यू तुम्हारी 1800 के बराबर है, जीरो से जीरो के 36 पंचे मतलब 5 के बराबर होना चाहिए। अब तुम्हें 310 रन चाहिए तो 62 डिग्री चाहिए, हिंदी आंसर आ गया सीधा। अगला क्वेश्चन, the outer surface of the sphere having diameter 10 is painted at the rate of this, what is the cost of the paint? स्फीयर है तो फिर आउटर डायमीटर पता ही तुम्हें, आउटर डायमीटर पता है तो तुम्हें आउटर डायमीटर भी तो करना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया तो मतलब रेट कितना आ गया, पाई 4/3, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 5 पचम 25, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इंटू, अब तुम्हारा पेंट कितना करना है 90/पाई, तो 90 से 90 चला गया, 25 चौको 100, 9000, 9000 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ऊपर तो 1 आ गया, 1 अपॉन नीचे का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस स्क्वायर मतलब 8/3 आंसर आ गया, खत्म, 8/3 आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द टू नंबर एक्स एंड वाई इज 38, ठीक है। तो हमारे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 38 का स्क्वायर, ये आया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 38 इंटू 38, 4 से चला जाएगा तो 19 इंटू 19, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, तो व्हाट इज द वैल्यू एक्स की स्क्वायर, कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 19, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 19 आ गई ना, वाई की वैल्यू आ गई 19.76। अगला क्वेश्चन, अ फॉल्टी वेट ऑफ वेट मशीन रीड्स 8 मतलब 850 की चीज को 1000 रुपए में दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्रोक्योर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड बाई 90%, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज caught by metrology department and then they ordered him to repair his weight machine and gave punishment to sell the good at a 12% discount on the cost price for a month. If each customer is now paying 22 रुपए per kg, ठीक है, and before the rate the amount that he have paid for the same quantity. Okay. अब वो सही कर रहा है, अब ये 22 तुम्हारी किसके बराबर है, 88 के बराबर है, 88%, 22 इंटू 4 तो मतलब 88% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22 अपॉन 88 इंटू 100, करेक्ट, 22 चौको 25, तो पहले 25 रुपए की कीमत थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, अब 25 की कीमत थी अगर, तो 25 की कीमत थी, तो 25 की कीमत थी पहले, तो 100 की जगह अब 119 दे रहा था वो, ठीक। अब ये देखो 1000 से 1000 चला गया, 119 मतलब 85 रुपए की अगर कोई चीज थी तो उस पर 119 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर 85 रुपए पे तुम्हें कितना, 15 और 19 34 रुपए का प्रॉफिट है, तो वो पूछ रहा है कि 25 रुपए पे कितना मिल रहा होगा, यही पूछ रहा है। 17 5 जे 85, 17 दूनी 34, 5 हम 25, तो 10 रुपए का मतलब 35 रुपए की पहली चीज मिल रही होगी, आंसर आ गया। अब पी बी ए और पी डी सी आर 2 सेकेंड, ठीक है, एंड ए डी इज द डायमीटर, करेक्ट, वेयर ऑफ सेंटर ओ एंगल ए इज इक्वल टू 50 और एंगल पी इज इक्वल टू तुम्हारा 30 दे रखा है, तो क्या पूछा इसने, एंगल क्वांटिटी एंगल डीबीसी कितना आएगा, डीबीसी, ओके ये वाला एंगल पूछा है, डीबीसी देख सकते ना, डीबीसी ये 50 है, ये 90 हो गया तो 40 हो गया, अगर ये 40 हो गया, ये 90 है तो ये 50 हो गया, और ये 50 हो गया, ये 90 बन जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, 50 50 50 90 40, तो ये आ जाएगा डीबीसी, 40 आ गया, 40 आया, डीबीसी आया मेरा 40, ठीक। इसने फिर पूछा एडीबी, एडीबी एडीबी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो दोनों बराबर है, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। अगला क्वेश्चन, एट अ कॉस्ट ऑफ 80 पैसा पर आर्टिकल, ठीक है, 80 पैसा पर आर्टिकल, एट अ कॉस्ट ऑफ 80 पैसा पर आर्टिकल, ठीक है, आराध्या परचेज 9950 आर्टिकल, ठीक है। अब सी पुट द सेलिंग प्राइस सच दैट द ओनली 800 आर्टिकल्स आर सोल्ड, शी वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1600, तो 950 का जो तुम्हारा सीपी है आर्टिकल का इज इक्वल टू
इनटू इसका कितना कितना प्रॉफिट 160/100 इज इक्वल टू तो इनटू 160 ऑफ द आउटले हाउएवर 120। इसको यार बाद में करेंगे, लंबा सवाल है। इसको क्या, इनफेक्टिविटी 6% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स आर इक्वल टू 56% ऑफ एम इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द फीमेल। तो बस मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 28 पंचे मेल अपन फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 1/28 पंचे 140 इंटू सुपर 100 गया 10 10 5/7। तो मेल अपन फीमेल कितना आ गया 5/7। ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल मतलब 5:7 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसको इसको करोगे, देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/5, 4/5 एक समझना, 3 दूनी 6 4/5, वो ये पलट जाएगा तो 5/12, 5 एक समझना 1/3 इंटू 5/4, करेक्ट 5/4 मतलब 5/12। और यहाँ कितना आएगा 15/12, ये हमारे 10/12, तो यहाँ से तो आ गया 10/12, 10/12। और यहाँ से कितना आएगा डिवाइडेड बाई, अभी डिवाइड करके आना पड़ेगा यहाँ से, ये कितना आएगा 16, 5 तियाँ 15, 3 तिरका 9, 27/16, ये आया 5/4 इंटू 16/27, 4 चौको 16, 20/27, 20/27 यहाँ से आया तो ये 27/20 आ गया, करेक्ट। हाँ 10 दूनी 20, 2 3 चौको 12, 3 9 27, तो 9/8, 9/8 आया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 7 ए इज इक्वल टू दिस, तो 7 ए प्लस 1 जे 8 है, 8 ए माइनस 38 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 में से कितना 40 50 52 बचा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, ए की वैल्यू होगी 13/2। There's two edge angle, acute angle. Sec 7a is equal to 6a9, 7 8a माइनस 38, तो ये 128, तो a की वैल्यू 16 आ गई, खत्म। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्किल विद द सेंटर ओ, एक सर्किल है विद द सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 12, ए बी एक लेंथ है, ठीक है, एंड टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, दे रखे हैं, इंटरसेक्ट आउटसाइड सर्किल एट पी, ठीक है, और ये ओ एक पॉइंट है, ठीक है, ये बन गया पूरा। if 2OP ये ओके इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ OA, ये 6, एक सेकंड रुकना, 2OP तो क्या पूछ रहा है, AP की वैल्यू पूछ रहा है, 2OP मतलब 2OP, OP अपॉन सीधी बात है, OP अपॉन OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, ठीक है। तो OP कितना आ गया मेरा, OP मेरा आ गया 5, ये कितना आएगा OA कितना आएगा, OA मेरा कितना दे दिया, OA मेरा जो दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है 2, करेक्ट, ठीक है। तो एक चीज बताओ 25 माइनस 4, तो रूट 21 होना चाहिए। अब रूट 21 तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है, क्या पता है, मुझे मालूम है कि ये इनका ये प्लस ये, तो लेंथ ऑफ एपी पूछी उसने कितना आएगा, लेंथ ऑफ एपी तो मुझे मालूम है कैसे निकलेगी, इस 5 3 3 ही है ना, ओपी 2 है, हाँ रेडियस पता है 2, ये 12 है, ये पूरी लेंथ पता है मुझे यार, इसके बाद में करेंगे। तो ये दो दो सवाल छोड़ गए ना, इंटेलिजेंस रीजनिंग में आ जाए एक बार फिर से। इसमें जो 13 नंबर सवाल छोड़ा था इसमें क्या करना था, ये छोड़ दो, इसके बाद में करते हैं 14 नंबर सवाल। 23 पंचे, इसमें 23 पंचे 25 पंचे, 25 भी नहीं हो रहा, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 25 23 पंचे 18, 18 3 54, ये भी नहीं, 18 4 72, 18 4 72, 105 में से माइनस करना, 5 में से 2 गई 3 10 33 प्लस 23 प्लस 10, ठीक है, 18 4 10, तो इसके तो 84 प्लस 25 प्लस 10, 84 5 4 9 8 2 10, 109 हो गया, 109 प्लस 8 आ गया, समझ गया। तो 14 कितना 14 4 56 नहीं, 18 4 72 ना, 14 4 56 और प्लस कितना है ये 56 प्लस 36, 6 6 12 1 कैरी 5 3 8 1 9, 92, 92 में कितना ऐड करूं, 92 में ऐड करूं के बीच में डिफरेंस कितना है 22 दूनी 44, 9 4 3 176, पहला ऑप्शन ही आंसर इसका। क्वेश्चन ये पहला आ गया, इसमें क्या था यार,
फाइव वर्ड पर विच टू डिजिट्स, देखो 5 को अगर 8 की जगह तो 185 हो जाएगा। 185 तुम्हारा 17 से कटेगा ही नहीं यार। डिवाइड की जगह तुम चलो माइनस भी रख दो, -17, फिर डिवाइड कर दोगे माइनस की जगह, तो डिवाइड बाई 13 करोगे तो ये फिर इससे नहीं कटेगा, तो ये हो गया 185। ये 153 हो गया डिवाइडेड बाई 17, और प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस 13 चौको नहीं 17, 13 की जगह 17 कितना 18/72 माइनस 30, फिर भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 7 की जगह रख दो, 8 को 7 की जगह रखोगे तो 18/17, 18/17 नहीं कटेगा। कितना 8 को 7 की जगह रखा तो कितना आ जाएगा 157, 157 माइन प्लस 18 और माइनस का 13 इंटू 4 52/30, 138, 138 डिवाइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आया। पेपर में पेपर अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट पेपर अच्छा था, मैथ्स इजी थी कंपैरेटिवली। 144 के आसपास होंगे, 144, 145, 136.5, परसेंटाइल 91.44। ओके, मार्क्स कम आए हैं यार बहुत। देखिए मैथ्स में क्या गलत हो गया यार, इस समय जनरल इंटेलिजेंस में 23 किए 22 सही है, एक गलत हो गया, ठीक है। और क्वांट में 23 किए हैं 22 सही है, एक गलत हो गया। इंग्लिश में 24 किए हैं 21 सही, 3 गलत हो गए। टोटल कितने गलत, 6 3 9 तो 11 गलत हो गए मेरे। अच्छा इसमें मेरे गलत क्या क्या हुआ, पहले इनकरेक्ट में देखता हूँ। इसमें रीजनिंग में क्या गलत हुआ, रीजनिंग कोई गलत हुआ? इसमें 11 रेक्टेंगल है क्या, 9 रेक्टेंगल है? एक सेकंड रुकना, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, ये 3 रेक्टेंगल, ये 3 आ गए, फिर ये 4, ये 5, एक 6, फिर एक 7, फिर ये एक 8 और एक 9, 9 ही तो आएंगे। भाई पागलों की तरह पहले 9 निकाला, 10 कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फालतू गलत कर दिया, एक हो गया। जनरल अवेयरनेस तो बहुत लंबा गलत ही है इसमें। इसमें इसमें मुझे एक चीज बताओ, हाँ, एंगल सी डी ए कितना आया? इसमें क्या किया, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 91/40, एंगल ए डी बी कितना आया? ए डी बी, एंगल ए डी बी तो 40 आया था, हाँ ए डी बी सीधी सीधी बात, तो 40 आएगा। और इसमें किसने पूछा था, एंगल बी डी सी, डी बी सी, डी बी सी अगर तुम इसमें पूछोगे, ये 90 डिग्री भाई यहाँ भी बनाएगा, 50 ये बना, डी बी सी 50 तो ये भी 40 बनेगा। ए बी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी डी पी डी बी पी, हाँ सही है 90 डिग्री। एंगल वन, एंगल बी डी पी कितना आ जाएगा इसमें से, एंगल बी डी पी, बी डी पी ओके यार, 50 30 80 से रखा तो ये 100 बनेगा ना पूरा। और अगर ये 100 बन गया पूरा तो ये कितना बन जाएगा, ये अगर 100 बन गया पूरा और फिर ये एंगल निकल आएगा, ये निकल आया तो ये वाला एंगल निकल आएगा। 40 पता ही है, ये 100 है, ये 60 है भाई, 100 ये 60 है, ये 60 30, ये 60 है, ये 100 है, और ये कितना आ जाएगा फिर, ये कितना आएगा 40, 100, 120 ये हो गया, 120 50, 180 तो 20 आ जाएगा। हाँ, 120 और 50 170 10, ये गलती होगी, ये क्वेश्चन गलत रह गया, ये हल्के में लिया मैंने इस क्वेश्चन को। अनअटेम्प्टेड में थे जो थे मेरे मैथ्स में करे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में स्पेशली पहले। इसमें क्या था, नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें क्या था 2500, इसको ऐड करो कितना आएगा 2509, 9 5 14, 3 2 64, ठीक है, 6 5 11 वन कैरी, 4 3 7 1 8 81 13, ओके ठीक है ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या गलत, दूसरा नहीं, कौन सा नहीं हुआ? अरे अच्छा एक चीज बताना, 153 मैंने इसको ही किया था ना, 183 183 153 158 है, इसको 183 कर दिया, प्लस डिवाइड की जगह डिवाइड ही था, 79 जा आ गया, प्लस 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 प्लस, भाई ये -80 लिख रखा, यहाँ पे -30 लिख रखा है, ये -80 कहाँ से हो जाएगा? ओके यहाँ पे भी तो 30 है ना यार, यहाँ पे भी तो बदल जाएगा। ये गलती हो गई यार, शिट, ये सवाल होना चाहिए था, ये सवाल और ये सवाल तो फालतू में गलत कर दिया यार इसको, गलत कर रहा हूँ मतलब अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को करते हैं। एट अ कॉस्ट ऑफ 80 पैसा पर आर्टिकल आराध्या ने 9.5 से सी पुट द सेलिंग प्राइस, तो एसपी अपन सी पे निकाल लो पहले तो। एसपी एसपी को कितने लोगों को बेचा, ओनली 800 आर्टिकल जब उसने बेचे तो उसे क्या बोल गया, शी वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60% ऑफ द, मतलब 9 इन 50 इंटू सीपी, और इसका कितना प्रॉफिट, कितना 60% प्रॉफिट, मतलब
मतलब 160 अपॉन 100 ये आ गया करेक्ट। अच्छा अब चीज बताओ, 10 से 10 गया करेक्ट, ये 0 से 1 0 गया करेक्ट, 16, 16 पंचे 80, 50 बचा। तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 50 अपॉन 95, मतलब कि 10 अपॉन 19 करेक्ट, ये आया। अब इसने क्या बोला, हाउएवर 120 आर्टिकल गॉट स्पॉइल्ड, 120 आर्टिकल स्पॉइल्ड कर दिया। 120 मतलब कितने, 830 आर्टिकल बचे करेक्ट। और डिस्पाइट सी वाज एबल टू सेल 830 आर्टिकल एट दिस प्राइस, फाइंड हर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट द परसेंटेज टोटल आउटप्ले। अब 880, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ उसे कितना, एक पे 9 का प्रॉफिट हुआ तो 0, 9 3 27, 2 कैरी 972, 0 9 3 27, 2 कैरी 972, 72 और 2 74, 7470 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ पूरे पे, इस पे उससे कितना हुआ, जो आगे 66%, देखो आया, देखो ये हुआ प्रॉफिट। देखो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी ऑफ दिस इनटू दिस एसपी अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.52 इनटू दिस। इन्होंने इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया ना। टोटल सीपी कितना हो गया, ये हो गया करेक्ट। टोटल एसपी कितना आ गया, 800। ओके सर ने डायरेक्ट किया, मैंने रेशियो से किया तो बस आंसर वैसे ही, रेशियो से भी करोगे तो भी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करोगे तो ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने क्या गलती किया, 2 OP। अच्छा एक चीज बताओ, 6 या 6 है, ये 5K है 2K है, तो ओ सिमिलैरिटी, ठीक है सही नहीं किया, इसमें टाइम बर्बाद कर देता। ये वाले 2 सवाल जो छोड़े हैं सही किया, ये वाला हो जाता मतलब ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पोटेंशियल मार्क्स जो मेरे इसमें होने चाहिए थे, पोटेंशियल मार्क्स मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, एक क्वेश्चन ये वाला और इनकरेक्ट कौन सा होगा, एक दो, 2 क्वेश्चन, एक मतलब 4.5 नंबर, 4.5 और 4.5 और ये 5 और 4.5 और ये 5 और कितना 7, ठीक है 7 नंबर और बढ़ाओ, 7 नंबर इसमें और बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 143, 143 नंबर के आसपास होने चाहिए मेरे इसमें। तो मुझे लगता है 143 पे रैंक कितनी बनती, 92 93 बनती मेरे हिसाब से। 143 पे कितनी रैंक बनती, 143 पे 584, 584 मतलब 584 मतलब 95 परसेंटाइल के आसपास। कोई नहीं, अब जैसा भी है यही है। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा मॉक था, मतलब काइंड ऑफ मैं इसको मॉडरेट मॉक में बोलूंगा, अच्छा मॉक था। स्पेशली क्या किया थी, कैलकुलेटिव था मैथ्स वाले में, और 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी जीएस भी अच्छी थी काफी, इंग्लिश ईजी थी। तो आप लोग ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए और आपका स्कोर बताइए कमेंट करके स्कोर, और इस तरीके से सेक्शन वाइज भी बताइए कि मतलब किस सेक्शन आपको कितने मार्क्स मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और मॉक देते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बस आपको भी पता है आज से 21 दिन रह गए, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते रह गए हैं, तो आप पूरी जियो जान लगा दीजिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, ताकि मॉक टेस्ट से आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे और आप सिलेबस के टच में रहें। तो आप लोग ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।